جی السلام علیکم۔ پاکستان میں فدا پاکستانی اس وقت موجود ہوں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی ایک نجی میٹنگ میں۔ ناظرین، کورونا کے باعث تمام تر کاروبار مارکیٹیں 2-2.5 ماہ سے بند رہی ہیں۔ اب SOPs کے تحت آہستہ آہستہ مارکیٹیں اور کاروبار کو کھولا جا رہا ہے، ایسے میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔ ناظرین، آج کی میٹنگ میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب ایک کمپنی جہاں ہزاروں لیبر کام کرتی ہیں وہ SOPs کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں، اس موب کو جو ہے اجازت دینا۔ مارکیٹوں میں جب ہم چلے جاتے ہیں ناظرین تو وہاں پر بھی ایک موب ہوتا ہے اور موب SOPs کو عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی مارکیٹوں کا کھلنا، کمپنیوں کا کھلنا اور اسکول کا بند ہونا یہ ایک کنسرن اتھارٹیز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائیویٹ اسکولس مالکان آج اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آج یہ میٹنگ منعقد کی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا گیا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ کمیٹی جو بھی کنسرن منسٹر ہیں، منسٹر فار ایجوکیشن اور بورڈ کے چیئرمین صاحب سے میٹنگ منعقد کرے گی اور انہیں باور کرا دے گی کہ پرائیویٹ اسکولس کو بھی SOPs دی جائے، اسکولس کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ان میں سے بیشتر کی جو اسکولس کی بلڈنگ ہیں وہ کرائے پر ہیں اور انہیں جو ہے کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اسٹاف کی سیلری کو بھی یقینی بنانا پڑتا ہے، جس پہ آج تفصیلاً بات ہوئی۔ یہاں اسکول مالکان کی ایک کثیر تعداد نے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ راؤ صاحب موجود ہیں۔ راؤ صاحب جو کہ پرائیویٹ ایک کالج چلاتے ہیں پاک عسکری کے نام پہ، آئیے ان سے آج کی میٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی راؤ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ ایکچولی ہم نے اس لیے بلائی گئی تھی کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں اور جو گورنمنٹ اناؤنس کر رہی ہے، 2 ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہیں، اس کے اوپر کہ اس کو پرائیویٹ سکولز کو کھولیں، بیکاز یہ کہ باقی چیزیں بھی کھول رہے ہیں اور بچوں کا بڑا لاس ہو رہا ہے۔ ایک تو ہمیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ ایگزام نہیں لے رہے، پروموٹ کر رہے ہیں بغیر ایگزام کے بچوں کو۔ اگر گورنمنٹ چاہتی تو یہ انہی اسکول کالجز میں ایگزام لیے جا سکتے تھے جہاں وہ پڑھ رہے ہیں، وہیں لیے جا سکتے تھے سوشل ڈسٹینس کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اس کو ہم ایگری کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ اب پرائیویٹ سکولز گورنمنٹ کی SOPs کے ساتھ کھولنے کی ڈیٹ دی جائے اور ان کو جو گیون ڈیٹ ہے اس کے اوپر کھول دیا جائے۔ اچھا راؤ صاحب، SOPs کی بات ہوتی ہے ہر جگہ میں، تو آپ SOPs کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ SOPs کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں، دیکھیں اب چائنا میں بھی اسکول کھل گئے ہیں، وہ بچوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ آنے سے پہلے جو بچے کالج میں آتے ہیں اس کو پورا ان کے لیے انہوں نے کیمیکلز ہیں جیسے ڈیٹول وغیرہ، اور اس کے بعد ان کو سینیٹائز کرتے ہیں بچوں کو۔ بچے کو ڈسٹینس جو مقررہ ڈسٹینس ہے اس کے اوپر بچوں کو کم بچے ایک کلاس میں بٹھائے جاتے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم آن لائن بچوں کو پڑھا سکیں، جو جس ایریا میں ہم اسپیشلی ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہے، ہمارے منسٹر صاحبان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں بھی ذرا اپنی ایکسپلینیشن دے دیں کہ آپ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں جو ہے وہ 30 بچہ بیٹھ رہا ہے، تو اب اس SOPs کے تحت آپ اس کو کس طرح سے یقینی بنائیں گے؟ سر ہم اس کو یقینی ایسے بنائیں گے کہ ہم اس کو 2 شفٹوں میں کر دیں گے۔ اچھا، 30 کے بجائے 15 بچہ بیٹھے گا ایک کلاس میں، تو وہ اس کو SOP فالو ہو جائے گی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی جو ماسک وغیرہ بچے پہنے وہ ہم کوشش کریں گے ان کو پہنائیں بچوں کو، اور باقی جو بچوں کی استعمال کی چیزیں ہیں جیسے پانی ہے، بچے کوشش کریں کہ اپنی باٹل گھر سے لے کے آئیں، نہیں تو ان کو ہم سینیٹائز کریں گے، ایسا سسٹم بنائیں گے کہ بچوں کو ایک دوسرے سے مکس نہ ہو چیزیں۔ انشاءاللہ، ہاں جی بالکل، تھینک یو ویری مچ۔ یہ تھے راؤ صاحب۔ ہمارے ساتھ محمد ارشد بیگ صاحب موجود ہیں، ان کا تعلق بھی پرائیویٹ اسکول سے ہیں اور ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی سر، آج میٹنگ کا جو حوالہ تھا وہ کیا تھا؟ آج بہت زبردست یہ ایجنڈا رکھا گیا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر میں اسکول بند ہیں، ان کو کھولنے کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جاتا ہے تو ہم اس حصے کو عضو کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اگر کینسر جگر میں ہو تو جگر کو کاٹا نہیں جا سکتا۔
इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे बंद नहीं किया जा सकता, उसे मुख्तलिफ जो हिफाजती तदाबीर हैं उसके तहत जो है स्कूल को फौरी तौर पर खोलना चाहिए। और एक जो कि हमारी मिनिस्टर हजरात का कहना ये है कि स्कूल एक माफिया है, उसको आप किस तरह से जो है डिनाई करेंगे और उसको डिफेंड कैसे करेंगे? मैं प्योरली इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा, जिन्होंने एजुकेशन को माफिया कहा है वो जाहिल लोग हैं। थैंक यू सर। यूसुफ खान साहब जो कि क्या है मेरे भाई, मेरा समझ ले बहुत बहुत ख्याल रखता है, हर जगह में पार्टिसिपेशन के साथ आते हैं। यूसुफ खान साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे आज की जो मीटिंग आपने मुनक्किद की, इस समय क्या डिस्कशन हुई और फ्यूचर प्लानिंग क्या दी आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज का जो बर्निंग इशू है पूरी वर्ल्ड का, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी वर्ल्ड का जो बर्निंग इशू है वो कोरोना का इशू है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोरोना नहीं है बल्कि ये खिलौना है, वो भी चाबी वाला खिलौना है जिसे जहाँ मर्जी जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर शख्स इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ममालिक उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव जो वो हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और पाकिस्तान में प्योरली ये तालीम दुश्मन एक एजेंडा पे काम चल रहा है कि तालीम को तबाह किया जाए, तालीम को पहले बर्बाद किया जाए और इसका आड़ लेके तालीम को बर्बाद किया जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। अच्छा सर, आप समझते हैं कि बच्चा आउट ऑफ स्कूल सेफ है? कतई नहीं। मैडम नाहिद, ये बताइए, स्कूल को बंद करके कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता। देखे SOPs के दिन मार्केट खोलेंगे या मार्केट में छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सारे जा रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ स्कूल में ही कोरोना है। तो SOPs के तहत मेरा मुतालबा ये है कि आप जून में स्कूल खोलें, हम SOPs पे अमल करेंगे और अगर आप नहीं खोलेंगे तो हम इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा मैडम आलिया जाकिर, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम ये बताइए, ये जो स्कूल को बंद किया गया है, तालीम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, कारोबार खुल चुका है, स्कूल्स को ही बंद करने का आपको क्या लगता है, क्या करने जा रही है हमारी हुकूमत? जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक तरह से ये साजिश हो रही है तालीम के उससे एजुकेशन से रिलेटेड। तो हुकूमत को चाहिए कि वो स्कूल्स को ओपन करें। अगर उनके साथ इश्यूज़ है, वो कहते हैं कि कोरोना का ये फैलाव जो है ना दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये किया जा सकता है कि अगर आप स्कूल नहीं खोल सकते तो फिर प्राइवेट एसोसिएशन के तहत उनके साथ आप मीन्स कि कोऑपरेट करके उनके तमाम टीचर्स और जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेम्बरान हैं उनको आप इतना रिलीफ दे दें कि वो अपना घर आसानी से चला सके। मैडम सलमा साहिबा भी प्राइवेट स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं, इनसे जानेंगे। मैडम ये बताइए, कोरोना जो कि अवेयरनेस का मोहताज है, कोरोना जो है अवेयरनेस का मोहताज है, क्या तालीम को दीवार से लगाकर आने वाली नस्ल कोरोना के बारे में जान सकती है? ये सर, अगर हम स्कूल जिस तरह ये बंद कर रही है गवर्नमेंट हमारी, तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आई थिंक इदारों वालों के लिए भी। तो अगर इससे जिस तरह हम स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं तो कोरोना अब इससे बढ़ेगा नहीं, बल्कि ये इधर मार्केटों में बाहर गलियों में बच्चे खेल रहे हैं इस तरह। आइंदा नेक्स्ट टाइम हमारे नस्ल जो आने वाले लोग हैं, हमारे ये बच्चे जो है, इनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, इन पे बहुत बड़ा असर अंदाज हो रही है ये चीज़। क्योंकि ये चीज़ अभी जस्ट कोरोना है हमारे, मतलब जिस तरह गवर्नमेंट का कहना है कि ये कोरोना ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह बच्चे जो है ना, तो हम अगर बच्चे यानी कि आइंदा 3-4 साल के अंदर बच्चे जो है बिल्कुल यानी कि इतना पीछे हो चुके हैं पढ़ाई लेवल में कि जितना आई थिंक इस चीज़ का उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यानी कि इस्माइल साहब जो कि माशाल्लाह से माजी के एक मायनास सहाफ़ी रहे हैं, तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर, बच्चे को जो है तालीम से हटाकर स्कूल्स बंद करके आने वाली नस्लें कोरोना से अवेयर होंगी? क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। आप समझते हैं इस तरह स्कूल बंद करके, जहालत को बेदार करके हाँ हम कोरोना का मुकाबला कर सकेंगे? मैं तो ये इस तरीके डिफाइन करूँगा तालीम को कि तालीम जो है हमारी शाहराग है। अगर इंसान के जिस्म में शाहरागी नहीं होगी तो इंसान कैसे चलेगा? अगर आप तालीम बंद कर देंगे तो आगे हमारा मुस्तकबिल जो है तारीखी में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दीगर मार्केटें वगैरह खोल चुके हैं, इस तरीके मैं चाहूँगा कि तालीमी इदारे और मदरसे भी ओपन होने चाहिए SOP के तहत, और इसी तरीके से हमारा मुस्तकबिल बचा जा सकता है। अच्छा सर, SOPs आपको दी गई हुकूमत की जानिब से या आप मुतालबा करेंगे जी हमें SOPs दी जाए
अकॉर्डिंग टू द SOPs हम स्कूल्स को रन करेंगे, और SOPs को आप डिफाइन किस तरह करेंगे ताकि ये मैसेज जो है वजीर तालीम तक पहुंच जाए, अल्लाह करे वो इस चीज़ को क्या है समझ लें और ख्वानदगी को वो आम करें जिस तरह से नौखवानदगी को उन्होंने किया है आम किया हुआ है स्कूल्स बंद करके। तालीमी तंजीमें जो हैं वो स्टीयरिंग कमेटी में बैठ चुकी हैं, उन्हें SOP भी दी है कि अगर एक स्कूल जो रन हो रहा है उसको हम लोग तकरीबन 2.5 घंटे 3 घंटे में रन करेंगे, 2 शिफ्टों में चलाएंगे। ये SOP दे चुके हैं और मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि SOP के तहत स्कूल खोले जाए, ना कि ये स्कूल जो है आस्ता आस्ता ये 50 से 70% स्कूल जो है बंद हो जाएंगे। हुसैन साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हुसैन साहब आज का प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे। हुसैन साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे, माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं। और हुसैन साहब ये बताइए, आज जो है जिन प्रिंसिपल्स की कमी रही है, क्या नेक्स्ट मीटिंग में आप दीगर प्रिंसिपल्स को भी बुला के इस मुहिम को तेज हो करेंगे? इंशाल्लाह फिदा पाकिस्तानी, बहुत शुक्रिया। आपने एक मेरी शॉर्ट नोटिस पर आप जो है ना आप अपनी टीम के हमारा पहुंचे यहाँ पर, और साथ साथ जितने भी प्रिंसिपल साहिबान बस एक रात के अंदर जिनको मैं एक्टिवेट कर सका आ गए हैं, तकरीबन 20-25 तक प्रिंसिपल पहुंच गए। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हमने अभी कमेटी बना ली है, उस कमेटी 2-3 दिन के अंदर जो है ना नेक्स्ट मीटिंग करेंगे और ईद के बाद के लाहेमल के लिए जो है ना हम तय करेंगे। अच्छा सर, आप भी दीगर लोगों की दम बदम मस्त कलंदर करेंगे या कुछ उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे जो मिनिस्ट्री है हमारी कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ? मिनिस्ट्री के साथ हो चाहे या प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, जो भी हो, एक बंदे चीज की एक जाती राय नहीं होती, सबका मुश्तरका तौर पर जो भी अमली जामा पहनाएंगे उसी के मुताबिक हम आगे कॉज को लेकर जाएंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये वो मौक़िफ़ था जो कि क्या है कहा जाता है किसी भी कौम को अगर तबाह करना हो तो उससे तालीम छीना जाए। तालीम एक ऐसी चीज है जहाँ इस तरह की याफ्ता दौर में जो है वो तोपों से जंग नहीं लड़ी जाती है, गनों से जंग नहीं लड़ी जाती है, कलम के जरिए जंग लड़ी जाती है, जिसको बायोलॉजिकल वॉर कहा जाता है कोरोना को। तो यहाँ कोई तोप गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने देखा एक क्या है केमिकल वॉर के जरिए दुनिया को मफलूज किया गया। तो तालीम को दीवार से लगाना ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ना शरई तौर पे हमें इजाजत मिलती है, ना ही कानूनी तौर पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।